Okay, sorry for that. We'll start now. Really glad you're my son. 11-year-old James Leininger looks and acts like most boys his age, but beneath his playful spirit is a very deep soul. And I said, I'm really glad you're my son, and I'm just really fun to have you as my son. And he says, I know, that's why I picked you. When we first met Bruce, Andrea, and James in 2005, his passion for World War II fighter planes was obvious. I can beat the Japanese easy as pie. The fascination began when he was a toddler. The final put them on? James seemed intimately familiar with the aircrafts. He started doing these little drawings of airplanes shooting at other airplanes or being shot down. Bombing. Okay, so basically यहाँ हो क्या रहा है, ये एक छोटा सा बच्चा है और वो पैदा होते ही उसको एयरप्लेन्स के बारे में बहुत नॉलेज है, ड्राइंग एयरप्लेन्स के बारे में और सब चीजें और ऐसी ऐसी चीजें बता रहा है जो माँ बाप को खुद नहीं पता और कभी टीवी में भी उन्होंने नहीं देखी और ये सब बातें बता रहा है. Ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. This is a carrier. The violent drawings were followed by extreme night terrors. He would just be crying. He'd say. तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे उसने एक दिखाया कि बॉम्बिंग हो रही है एयरप्लेन से और शूटिंग हो रही है और ऐसे जैसे वॉर का बिल्कुल सीन उसने ड्राइंग्स वगैरह में दिखाया है. तो अब अचानक रात को सपने आने लग गए और सपनों में उसको बहुत ज्यादा डरावने सपने आने लग गए. Airplane crash on fire, a little man can't get out. He laid on his back and kicked. तो उसको ये सपना आ रहा है कि उसके प्लेन में आग लग गई है और वो बाहर नहीं आ पा रहा और वो ऐसे हैरानगी से उठ रहा है और उसकी माँ, ये मदर है उसकी, वो बता रही है. Picked up at the ceiling and he goes, "Mama, the little man's going like this." And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, "Ooh, ooh, 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 ooh," can't get out. And I said, "Well, who's the little man, baby?" And he goes, "Me." I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, "The Japanese." Where did he take off from a boat? "Do you remember the name of your boat?" He said, "Natoma." And his name? He always said James, but his name is James. Stunned by his son's words, Bruce tracked down veterans of the USS Natoma Bay. I wanted to disprove it. Columbus, Ohio. तो बेसिकली वो बता रहा है सारी डिटेल्स कि कौन सा प्लेन था, उसने कहाँ से टेक ऑफ किया था, कहाँ पे शूट डाउन हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ था. तो उन्होंने पूछा कि भाई ये किसने करा है, उसने कहा ये जापान. तो ये सब चीजें वो बताता जा रहा है और उसके फादर कहते हैं कि मेरे को प्रूव करना था कि ये जो भी बोल रहा है वो सच्चाई नहीं है, वो ऐसे ही बस सपने अपने हैं. तो वो रिसर्च करने लगा कि कभी ऐसा कभी हुआ था कि कोई प्लेन उड़ा हो ऐसे ऐसे नटोमा बे एरिया से और ऐसे गया हो. तो वो रिसर्च करने लगा उस पर. Native Leo Pyatt served on the ship. He asked a few questions about did I know some of the people. Oh yeah, I remember those people. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell just hit him in the engine and it burst into flames and went down. It was all real. James Houston, born and raised in the Midwest, was shot down over Chichijima, Japan. He got very quiet. The Leiningers were speechless again when James met Natoma Bay veterans and recognized them by name. "You're Bob Greenwald." I'm serious. He'd never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. They tracked down James Houston's sister, Ann. And he goes, "It's not Ann, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that." And I said, "You did? Who was that?" And he goes, "Ruth. I mean Ruth." Annie is what they called me when I was little. Knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe. James recalled his favorite childhood possessions, and when we spoke to them via Skype, they shared one specific story involving James Houston's mother. Annie had sent James the picture that her mother had painted of James Houston. And when James got it, he called Annie to thank her, and he said, "Where's the one Mom painted of you?" And so she went and found it and sent a copy, and later on she told us that no one in the world except her brother and sister knew that there was an identical picture of Annie when she was the same age. Amazing stories like that caught the attention of Japanese filmmakers. Not long after our story aired, they flew.
ओके, सो बेसिकली ये कितने सारे एग्जांपल्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने स्टडी किए हैं. कई साइंटिस्ट हैं, इयन स्टीवेंसन और अलग अलग साइंटिस्ट, वो ऐसे केसेस स्टडी करते हैं और क्लियर कट पता लगता है कि रीइंकार्नेशन का साइंटिफिक बेसिस है. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, बट ऐसे कई सारे केसेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बुक्स में लिखा है. ये भगवत गीता जो है उसका एक श्लोक है और एकदम क्लियरली बताता है वो कि कैसे हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी मिलती है. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अ सोबर पर्सन इज नॉट बिविल्डर्ड बाय सच अ चेंज. अभी जब पहली बारी मैंने पढ़ी थी तो बड़ी मेरे को हैरानगी लगी. मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बिविल्डर ना हो. हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं कि कोई बिविल्डर ना हो. डेथ से हमेशा लोग बिविल्डर हो जाते हैं. लोगों को पता नहीं लगता कैसे फेस किया जाए डेथ को, क्या सही है. लोग सोचते हैं कि ये चाहे उनकी डेथ हो या उनके कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स किसी की भी हो, तो उनसे इतना ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं हम. इतने सारे हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किए हैं. तो अब कैसे इसको समझें कि सोबर पर्सन इज नॉट बिविल्डर्ड बाय सच अ चेंज. उसे घबराता नहीं है, बिविल्डर नहीं हो जाता. तो ऐसे ऐसे क्या है सोबर मीन्स जो यहाँ पे प्रभुपाद यूज कर रहे हैं सोबर वर्ड, उसके लिए जो मैच्योर है, स्पिरिचुअली एडवांस है वो व्यक्ति. तो स्पिरिचुअली एडवांस होने का क्या मतलब है, ये सब चीजें यहाँ पे पता लगी. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे. कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? कोई I will वॉलंटियर? read. हाँ प्लीज. अच्छा चलो. भव्य The Mayav. Yes, I'm reading. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally, Sanatana, and are called Kshara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same, fragmental. But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. The theory of reflection can be applied to the supersoul who is present in each and every soul, each and every individual body, and is known as Paramatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars as well. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the supreme soul is the personality of Godhead Sri Krishna. They are not on the same level, as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship of instructor and instructed become meaningless. If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity, Arjuna, who is a forgetful soul deluded by Maya. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू. ओके, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं. इसको सिंपली अगर हम समझें तो यहाँ पे मेन पॉइंट हमने जो डिस्कस किया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं. और जो ये कॉन्सेप्ट है आत्मा का और हमारे शरीर ना होने का,
ये बहुत ज्यादा लोगों को डीप नॉलेज नहीं है इसकी, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को इस बारे में। जैसे अगर आप कभी देखो, हम यहाँ पे मिलते हैं अमेरिकन से और ऐसे लोगों को जिनको इनके इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो उससे वो कभी आपसे पूछें कि भाई आपका क्या रिलीजन वो है और आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, और उनको आप ये बोलो कि हमारा बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि देखो, वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर स्पिरिट सोल डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। अब हम इंडियंस जो होते हैं उनको ये बोलो कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, कहते हैं हाँ पता है यार, मुझे पता है, हम बचपन से सुन रहे क्या है। तो उनको यही पता है इंडियंस को कि क्या है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो सोचते हैं हाँ बस यही है, खाओ पियो ऐश करो, यही करना है हमने। कोई इससे वो समझते नहीं है कि क्या इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है, समझे कैसे। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे किससे हमने बात की, उसको बोला तो वो कहते हैं वाओ सीरियसली दैट इज सो डीप, you are not this body but you are spirit soul different from this body, my god that is really fascinating। तो वो ऐसे उसको लेते हैं। तो इस हमारा एटीट्यूड भी डिपेंड करता है कैसा हमारा एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड सही मायने में सीखने का होगा तो हम उसकी इतनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ सकते हैं। अदरवाइज हम सोचेंगे हाँ ठीक है यार, बड़ी बारी सुन रखा है हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अपना भाई जो हम आज तक करते आए हैं वही करते रहो। और उससे क्या होता है कि यू लूज द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आपको सीखने की, आपको अपनी लाइफ में अच्छे से सक्सेसफुल होने की, ग्रो करने की, खुश होने की, हैप्पीनेस और ब्लिस अचीव करने की, ये सारी अपॉर्चुनिटी आप लूज कर जाते हो। तो ये सारी की सारी चीजें भगवत गीता आपको बताती है, और भगवत गीता में ये क्लियर कट एक्सप्लेन होगा आगे। जैसे अभी प्रभुपाद ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो अभी हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले श्लोकों में वो सब क्लियर होगा। आने वाले जो श्लोक अभी कृष्ण बता रहे हैं, तो अभी क्या बताएंगे, सबसे पहले इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था कि ये सारे राजा, आप, मैं, हम सब लोग जो हैं, वो कभी भी ऐसा समय नहीं था जब हम लोग नहीं थे, और आने वाले टाइम में कभी भी ऐसा समय नहीं होगा जब हम लोग नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमेशा से हम थे और हमेशा हम रहेंगे। ये कैसे पॉसिबल है, अब इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। क्योंकि ये जो शरीर है ये टेम्परेरी है, और आत्मा जो है वो इटर्नल है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो जैसे बचपन में कोई बच्चा था, उसकी बॉडी चेंज हो गई जब वो लड़का बना, बड़ा हो गया, और जब वो मैन बना तब उसकी बॉडी और चेंज हो गई, और जब वो ओल्ड मैन बन गया तो उसकी बॉडी और चेंज हो गई, और मृत्यु के बाद वो बॉडी और चेंज हो गई। इस तरह से सबकी शरीर जो है चेंज होता रहता है। और जो इस सच्चाई से घबराता नहीं है और इसको समझता है, वही व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअली एडवांस या मैच्योर कहलाया जा सकता। तो ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो बता सकते हो। Yes, I want to ask one question. हाँ जी बताओ। Abhi, when I was reading, there is this sentence, these fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual souls remain the same fragmental. What does this mean? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो आत्मा है वो लिबरेशन होने के बाद भी आत्मा ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वो लिबरेशन होने के बाद परमात्मा के साथ विलीन होके परमात्मा बन जाए। ठीक है ना, कई लोग कहते हैं आप लिबरेशन मतलब मोक्ष मिलना। जब आपको मोक्ष मिल जाता है, कई लोग कहते हैं उसके बाद आप आत्मा से परमात्मा बन जाते हो। लेकिन यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। ऐसी जो थ्योरी लोग फॉर्मुलेट करके स्प्रेड करते हैं वो गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि ये जो शरीर मिलता है उसके बाद शरीर छोड़ते हैं, हम दूसरे शरीर में जाएंगे। दूसरा शरीर होगा या तो मटीरियल होगा वो, और जो दूसरा शरीर है वो आज हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स है, उस हिसाब से डिटरमाइंड होगा। और जो मृत्यु के वक्त
मरने के टाइम में हमारे थॉट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे को कौन सा नेक्स्ट शरीर मिलेगा। जैसे एक बारी का टाइम था, एक राजा थे, उन राजा का नाम था भरत, और भरत जो थे वो पूरे धरती के राजा थे उस वक्त, और उनके नाम पे ही भारतवर्ष, इस धरती को भी भारतवर्ष कहते थे, पूरा का पूरा स्प्रेड था भारतवर्ष का राज्य। वो धीरे धीरे सिकुड़ के अब इंडिया हो गया, पहले वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ था। और जो भरत महाराज हैं उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। और फिर एक टाइम आ गया जब वो बिल्कुल अपनी पीक पे थे कैरियर के, उनको समझ में आ गया कि अब ये सही टाइम है मेरे को रिटायर होने का, बाकियों को मैं अपना राज्य दे देता हूँ, जो राजा बनने के काबिल हैं उन्होंने अपना राज्य दिया, बाकी उनके भाई बच्चे जो भी थे फैमिली को, और वो चले गए तपस्या करने। जब वो तपस्या करने चले गए, मेडिटेशन करने चले गए जंगल में, तो वहां पे एक बारी वो छोटी सी कुटिया थी उनकी, कुटिया के बाहर नदी थी, नदी में जा रहे थे पानी पीने, और वहां पे एक हिरनी जो थी, प्रेग्नेंट हिरनी थी, वो भी वहां पे पानी पी रही थी। और तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। शेर ने बड़ी जोर से दहाड़ा, जब दहाड़ा उसने, तो उस दहाड़ से ही वो जो प्रेग्नेंट हिरण थी उसको इतना डर लगा कि अब आगे शेर मुझे खा जाएगा, और इस डर के मारे वो बिल्कुल एकदम इतनी प्रेग्नेंट थी कि उसकी डिलीवरी होने ही वाली थी, और इस दहाड़ के चक्कर में उसकी डिलीवरी वहीं पे हो गई, और डिलीवरी हुई और साथ ही साथ उसकी मृत्यु भी हो गई डर के कि अरे अब मैं भी मर जाऊंगी, मेरा बच्चा भी मर जाएगा। और हिरण ये सोच के ही जो है हिरण वो मर गई। अब जब मर गई तो उसका बच्चा तो पैदा हो गया था, तो भरत उस वक्त वहां पे पानी पी रहा था, उसको लगा कि ये देखो मेरे को इसके बच्चे की रक्षा करनी चाहिए वरना शेर आके खा जाएगा। वो लेके गया उसको और अपनी कुटीर में रखा उसने। अब धीरे धीरे करते 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 वो बच्चा बड़ा हो गया, और वो उसका बहुत ध्यान रखता था, वो सोचता था कि मेरे को ध्यान रखना है। लेकिन इस चक्कर में वो अपनी मेडिटेशन और तपस्या जो करने आया था जंगल छोड़ के, उसमें से डिस्ट्रैक्ट हो गया। दिमाग में हमेशा हिरन 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 होती रहती थी उसे, हिरन एक, तो क्योंकि वो हिरन चिंता करता रहता था टाइम में, एक टाइम ऐसा आया जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, और तब भी उसको किसकी चिंता हो रही थी? हिरन की चिंता हो रही थी। और क्योंकि उसको हिरण की चिंता हो रही थी मृत्यु के वक्त भी, तो उसके दिमाग में हिरण ही चल रहा था। तो उसके दिमाग में जो हिरण चल रहा था उसकी वजह से उसको नेक्स्ट शरीर किसका मिला? किसका मिला नेक्स्ट शरीर? हिरण का हिरण का शरीर। Whatever we think at the time of death, that very body we get. जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है मृत्यु के समय पे, वही शरीर हमें मिलता है नेक्स्ट लाइफ। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा भगवान पे होगी, कृष्णा पे होगी, तो नेक्स्ट लाइफ जो मिलेगी हमें वो भगवान के साथ मिलेगी। जब स्पिरिचुअली एडवांस हो जाता है व्यक्ति, फिर वो धरती में नहीं रहता, फिर उसको जो बॉडी मिलती है वो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी होती है। एक्चुअली स्पिरिचुअल बॉडी हमसे अलग नहीं हो सकती, वो शरीर स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है वो हमारा असली रूप है, और वो असली रूप में हम भगवान के साथ रह सकते हैं, कृष्णा के साथ। और वहां पे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे कोई जन्म मृत्यु ज्वरा व्याधि ये सब नहीं होता, बर्थ डिजीज ओल्ड एज और डेथ नहीं होती। वहां पे क्या होता है? सिर्फ ब्लिस, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, और भगवान के साथ हम एंजॉय करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना असली मोक्ष की परफेक्शन है। मोक्ष भी कई तरह का होता है, उसमें ये पूरी अपने में एक साइंस है, उसमें भी हाईएस्ट होता है जिसमें हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं भगवान के पास। तो ये सब ज्यादा डिटेल्स हैं पे। जो आपका क्वेश्चन था उसका ये मतलब है कि फ्रैगमेंटल पोर्शन मींस कि सोल आत्मा ही रहती है, वो परमात्मा नहीं बन जाती। समझ में आ गया? Okay.
Yes, thank you. थैंक यू। तो भरत का क्या हुआ? उसके नेक्स्ट लाइफ में भरत को सक्सेस मिली आने वाले जन्म में, क्योंकि वो पहले से बड़ा स्पिरिचुअली एडवांस था। लेकिन यहाँ लेसन ये है कि डिस्ट्रैक्ट होना बड़ा आसान है। स्पिरिचुअल लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होना बड़ा आसान है। इनफैक्ट कहीं भी किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना वो बहुत ज्यादा इजी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इट इज वर्थ इट। थोड़ी सक्सेस से मैक्सिमम बेनिफिट सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में होता है। इसलिए आगे अभी हम देखेंगे 40th श्लोक जो होगा इस चैप्टर का, उसमें भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि थोड़ा सा प्रयास, थोड़े से प्रयास से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है हमें, अगर हम भगवत गीता के हिसाब से अपने लाइफ को चलाएं। अगर हम थोड़ा सा इस पाथ में बढ़ें और थोड़ा सा भी कोशिश करें तो उससे हमारे को बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस है, रिसोर्सेज हैं, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उस सब को हम भगवत गीता को स्टडी करके लाइफ में अप्लाई करने के लिए उसको यूज करें। अदरवाइज हमारी जो इतनी इंटेलिजेंस है, हमारी जो इतनी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास मनी है, ऑपुलेंस है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर हमने भगवत गीता को पढ़ के अपनी लाइफ में नहीं लगाया तो। और अगर हमने ये कर लिया तो वो सब that will be the perfection of all the resources we've got. सारे के सारे रिसोर्सेज जो है हमारी, उसका परफेक्शन होगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? I have a question. हाँ जी। That is that in older days, people used to go to the forest when they used to take Vanaprastha, and they would meditate, and whatever came on their way, they left this body, they died. In today's day, we are all living in cities, and we have to deal with old age, infirmity, disease, pain, everything. Now, in some countries, the government is taking care of the people in that situation. In our country, government is not taking any responsibility of these people, and we have to take our own responsibility. So we have to collect resources, money for our old age, because nobody wants to be sick and die on the streets. So how do we deal with that? It's all very nice to say that leave the money, leave opulences, don't work. But how do we deal with these practical aspects, practical problems? ओके, दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि भाई देखो, हमने अभी डिस्कस किया कि हाँ, हमें फाइनेंसेस और मनी के पीछे नहीं जाना चाहिए और स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जीना है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कितनी सारी चीजें करनी है। तो किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमें ओल्ड एज के लिए प्लानिंग करनी है अपने फाइनेंसेस की, क्योंकि पता नहीं देर सवेर किस चीज की जरूरत पड़ जाए। आजकल मेडिकल फील्ड इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, मेडिकल एक्सपेंडिचर इतना हो गया है और बाकी सारी चीजों में एक्सपेंसेस हो गए हैं। फिर कोई ये कह सकता है कि भाई हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के लिए हमें सिक्योरिटी करनी है, तो हम कैसे पैसे को कैसे भूल जाएं। तो द क्वेश्चन इज नॉट कि हम पैसे को भूल जाएं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज में से केयरलेस हो जाएं। कई बारी जो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को इससे डिसाइड किया जाता है कि आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो कि नहीं, कि आप कितनी केयरफुली दोनों चीजों को बैलेंस करते हो। हमारा जनरली क्या होता है, ज्यादातर लोग इस आर्ग्यूमेंट पे कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ देखनी है, हमें फाइनेंसेस देखने हैं, उस आर्ग्यूमेंट में स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्कुल लेते ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं आप करो, अभी हम जब यंग होते हैं वो कहते हैं अभी के लिए थोड़ी है यार ये, अभी तू क्या करेगा मंदिर जाके, छोड़, अभी तू क्या करेगा भगवत गीता पढ़ के। तो तब के लिए 60-70 हो जाए, जब मुंह में दांत नहीं, कान में वो नहीं है, पेट में आंत नहीं, कान में सुन नहीं सको, आंख से देख नहीं सको, तब तुम कर लेना भगवत गीता, अभी क्या जरूरत है।
बट ये बिल्कुल गलत चीज है क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझोगे तो फिर आप कहाँ से उसके हिसाब से अपनी लाइफ को फॉलो कर सकते। तो वी हैव टू बैलेंस मीन्स हर चीज की जगह है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हम अपनी भगवत गीता के चक्कर में अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पल्ला झाड़ लें, कह रहे छोड़ो क्या जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि हम बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने के चक्कर में भगवत गीता को सीरियस नहीं लाने, क्योंकि अपने अपने हिसाब से हमें देखना है कि क्या हमारी नीड्स हैं और उसके लिए हमारे पास अच्छा अरेंजमेंट है कि नहीं। क्योंकि अगर हम वांट्स पे जाएंगे कि क्या क्या हमारी वांट्स हैं, तो वो तो कभी खत्म नहीं होती। जो बिलियनियर हैं बड़े बड़े, उनकी भी वांट्स ये होती हैं कि भाई अभी हमारे पास 1 ही बिलियन है, हमारे पास 10-15 बिलियन होना चाहिए। कोई 10 बिलियन है जिसके बाद कहता है 100 बिलियन होना चाहिए, तो वो कभी खत्म नहीं होता। सिमिलरली जिस भी स्टेज पे आज हम हैं ना, हमारा टारगेट होता है उससे ऊपर कि इतना अगर हमारा फाइनेंशियल हो जाए फिर मैं कर सकता हूँ भक्ति अच्छे से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि भाई हाँ, हमारी ये मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये भी हमारे को करनी है, या हमारी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी हमें करनी है, इमोशनल है वो भी करनी है, फैमिली, सोशल, उन सबको करना है। मगर स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें प्रायोरिटी देनी है। स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर हम प्रायोरिटी दे के बाकी सब चीजों को फिट करेंगे तो फिर फिट हो सकती है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल को एंड में रखेंगे कि पहले मैं बाकी सारी चीजें कर लेता हूँ पूरे दिन में, फिर देख लूंगा भगवत गीता कब टाइम आता है, तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारी भगवत गीता निग्लेक्ट होती रहती है। और सोसाइटी भी इस तरीके से अरेंज की गई है जिसमें बिल्कुल भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता अगर आपको फ्रॉम सोशल सर्कल या सोशल एनवायरनमेंट, सोशल उससे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता भगवत गीता पढ़ने का, बल्कि डिस्क्रेडिट कभी कभार मिल जाता है। कई बार लोग कहते हैं अरे क्या तुम ये कर रहे हो। और सोसाइटी ऐसे सब कुछ ऐसा अरेंज किया हुआ है जहां पे हमें लगता है जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत भगवत गीता पढ़ने की? अरे स्कूल की किताब पढ़ेगा कम से कम कोई नौकरी मिल जाएगी अच्छी, भगवत गीता पढ़ेगा कुछ मिलना भी नहीं तेरे को। ये ऐसा लोगों की धारणाएं हैं जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअली भगवत गीता अगर पढ़ेगा तो और भी बेटर तरीके से अपना प्रोफेशन में कर सकता है वो, बट लोग निग्लेक्ट करते हैं इस चीज को। तो माय पॉइंट इज नॉट टू बी केयरलेस इन एनी ऑफ द सर्कल्स, बट एट द सेम टाइम वन हैज टू बी वेरी जेन्युइन, ऑनेस्ट एंड इंट्रोस्पेक्टिव। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए हमें कि हाँ भाई कितनी भूख है हमारी, हम ग्रीड की वजह से जा रहे हैं पैसे की, या नीड की वजह से जा रहे हैं। और ज्यादातर लोग ग्रीड की वजह से आते हैं, सब नहीं, कई लोगों को जेन्युइन नीड होती है, कई लोगों को जेन्युइन जरूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू प्लान, वी हैव टू हैव अ मैच्योर माइंडसेट कि हाँ भाई मैंने अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज करी है और मेरे को अपनी फाइनेंशियल और सोशल और फैमिली हर तरीके से अपनी ड्यूटीज को निभाना है, तो उस हिसाब से हम चल सकते हैं। डज इट आंसर योर क्वेश्चन आंटी? Yes, to some extent. Okay. You want to share some more insight to it? I'm sure you can answer this question better than me. Neelam aunty? Based upon and other reading, you can probably share some more. Actually, I have lots of doubts about this, but I think that will be veering away from the subject. So we'll talk about it some other time. ठीक है, thank you very much. Okay. Or question, comment, कोई point? Okay. So one thing I wanted to say. हाँ बताओ. मतलब we just saw the video reincarnation वाला, तो basically it said that the person remembered everything. So even does it depends on karma that you'll forget or you'll remember your previous life or not? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि कई लोगों को भाई अपनी प्रीवियस लाइफ पता लग जाती है, याद रहती है, कई लोगों को नहीं याद रहती। ये क्या चक्कर है? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमें याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी। बट एक्चुअली फॉरगेटफुलनेस इज अ ब्लेसिंग, ठीक है ना? जो फॉरगेटफुलनेस है वो एक ब्लेसिंग है। क्यों है ब्लेसिंग? क्योंकि अगर हमारे को याद रहे इतने सारे जन्मों का जो हमने पहले लिए हैं, तो एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि मैं ये वाला जेम्स हूं या मैं वो वाला जेम्स हूं।
जो पुरानी लाइफ में मेरे माता पिता थे, मैं वो है मेरे माता पिता, या अभी वाली लाइफ वाले हैं मेरे माता पिता? तो बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। और कई सारे ऐसे जो स्टडी किया इस चीज में, उसमें कई सारे लोगों ने जो कि जिनके पास ऐसे बच्चे थे, उन्होंने जान के उन बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जहां पे वो भूल जाए पुरानी लाइफ, क्योंकि अदरवाइज वो देख रहे थे कि बच्चा काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है, काफी ज्यादा उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे उसको कोप अप करना और डील करना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए बहुत केसेस में जो साइंटिस्ट हैं, कई लोग जो हिप्नोटाइज वगैरह करके पास्ट लाइफ में जाके पता भी करते थे, वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा रिमाइंड नहीं कराते बच्चे को, बिकॉज ऑफ द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। तो फॉरगेटफुलनेस इज अ ब्लेसिंग, इसलिए कृष्णा ने अरेंज किया है। कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं 15 चैप्टर में 15 श्लोका, that कि I am the source of all remembrance and forgetfulness, कि सारा का सारा जो भी किसी को कुछ याद रहता है या कोई भी कुछ भूल जाता है, वो मेरा ही सोर्स है। तो ये फॉरगेटफुलनेस एक ब्लेसिंग है जो कृष्णा के अरेंजमेंट से मिलती है, और बड़े सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमको वो लाइफ याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी। क्योंकि कोई पिछले लाइफ में अगर कोई जानवर का शरीर था और इस लाइफ में उसको ह्यूमन शरीर मिला है, तो उसको क्या जानवर का साथ रिलेटेबिलिटी नहीं है। या पिछली लाइफ में कोई और भाषा आती थी उसको, इस लाइफ में कोई और भाषा है, तो उसमें भी थोड़ी रिलेटेबिलिटी कम हो जाती। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस ये भी थे जहाँ बच्चा बिल्कुल टोटली डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा था इस लाइफ में, जहाँ एक्सपोज नहीं हुआ। तो उन्होंने पता किया, उनको पता लगा कि कई सारे कनेक्शन है पिछली लाइफ से। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे की वजह से बहुत लोगों को ही ऐसा होता है कि नेक्स्ट लाइफ की जानकारी हो या याददाश्त हो। बाकी ज्यादातर लोगों के लिए बाय मर्सी ऑफ कृष्णा वो चीज हट जाती है। और डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा आल्सो। कर्मा के हिसाब से अगर हमारे को कोई पेन चाहिए पुरानी यादें ताजा करने के लिए, तो वो पेन इसके थ्रू आ जाती है। Got it. ओके, थैंक यू। और कौन बताएगा कुछ? कोई क्वेश्चन, कमेंट्स, कोई पॉइंट्स अगर फाइनल हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो वील एंड इट। I want to say something. हाँ जी भव्य, बताओ। I feel that responsibility is something which no one can ignore, but through the spiritual aspect, one can always self introspect and seek guidance and take wise decisions in life. Basically, the way how one should lead their life. But this does not mean that one should ignore and keep aside all responsibilities. Both should go hand in hand, but you should not disrespect either. Very good, perfect. Thank you. Very well put in words. तो हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। जैसे अब आप देखो, पुराने पिछले कितने साल हो गए भारत को आजाद हुए हुए? 70 साल हो गए। और कितने % लोग हैं जिनको भगवत गीता की ट्रेनिंग है बचपन से, या जिनको अच्छी ट्रेनिंग है? क्योंकि सोसाइटी में कितने, कहीं पे भी आप आ जाओ, लोग इस चीज को अहमियत नहीं देते आज। ये फैक्ट है। I don't know how many of you agree with it or not agree with it, but it is a fact कि ज्यादातर लोग आज के टाइम पे ये सोचते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे अच्छी फाइनेंशियल, अच्छी जॉब मिल जाए हमारे बच्चे को, अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाए, तो जिससे कि वो वैल्यूएबल्स एक्यूमुलेट कर सके। मगर व्हाट अबाउट द वैल्यूज? Are we talking about only valuables or values as well? Nobody is saying that you forget about valuables. No, it is very good. Money is always needed. सबके लिए ये है कि हाँ भाई पैसा होना ही चाहिए, मगर not always at the cost of the spiritual aspect. क्योंकि हेल्थ, अच्छी हेल्थ का एक और कंपोनेंट है। एक तो डेफिनेशन जो है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और साथ में स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है ना? हेल्थ की डेफिनेशन में स्पिरिचुअल भी ऐड होता है। तो वो चीज अगर हम मिस करेंगे तो उसकी वजह से लोग बड़े बड़े अंदर से खोखले हो जाते हैं। ऊपर से बड़े अच्छे से स्मार्ट, खुश, वेल ड्रेस्ड, मगर अंदर से खोखले, हॉलो। उसकी वजह से लोगों को
फुलफिलमेंट नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती, लोग सुसाइड करते एजेस में, कितने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है उसको डील करना चाहिए, जो कि भगवत गीता इज अ ग्रेट सोर्स, और उससे इमोशनल, सोशल और फिजिकल सारे कंपोनेंट का भी बेनिफिट होता है। ओके, यस, I think they should. I just want to make one sentence. yes, I think number one, we should have a balance in our life, the spiritual and materialistic. And second, that in the school, they teach everything else. Why they can't teach the religion or Hinduism as one of the subject? Because that would really, wake up the people, and they will have better knowledge of the spiritual thing. I think that might solve a lot of the emotional and suicide problem too. Thank you, Mataji. That's a very good thing, very good suggestion, very good point. But before we ask the school कि स्कूल वाले पढ़ाएं, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि कितने माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं भगवत गीता। तो ये चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने घर में अपने बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उससे भी पहले बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है, सबसे पहले है कि खुद हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है हमारा, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि हाँ भाई अब बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। बट वेरी नाइस पॉइंट निर्मला माता जी। ओके, आई थिंक okay, just like algebra and science, lot of the parents don't even know this Hinduism deeply, or they don't think it's necessary. But if the school make that like mandatory one subject, elective or whatever, then I think when the kids study, the parent would also kind of, take some interest. So, and the kids are now the foundation of the future. So I think that, that would be my suggestion. That now even the MSU university and some of the university are even teaching Hindi. So why, our country where the culture is originated, they need to teach at least a little bit of this Hinduism or about our religious magazine literature. I'm not saying very deeply, or they have to recite all the Sanskrita and they have to do know all the Adhyay by heart. Or, I'm not saying that, but at least some exposure to our Hindu culture. Thank you very much, Mataji. I wish you good luck for your suggestion. I don't know who will take this suggestion though. मगर आपने ये बोला कि कई लोग माता पिता को नहीं पता वो बच्चों को कैसे सिखाएं भगवत गीता। आप उन्हें हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो। हमारी डेडिकेटेड क्लासेस हैं बच्चों के लिए, और हमारे जैसे ऐसे कई सारे इस्कॉन के स्कूल्स हैं जिसमें भगवत गीता की सिस्टमैटिक टीचिंग होती है। तो आप हमारा उनके साथ शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू टीच देम। Yeah, I want my granddaughter to get involved. So I kind of want to get some kids Bhagavad Gita or get some story books about Krishna and all that. So I can study with them. I can, get them exposed. So Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Yes, Mahira wants to say something. Okay. चलो बताओ। मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। देखो ऐसे ही बच्चे हैं जिनको अच्छा माहिरा, my granddaughter finally some of that. आपको देहिनो अस्मिन् यथा देहे श्लोक आता है? ओके, तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है, ये आपको हम सिखाएंगे चिल्ड्रन क्लास में नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और वील गेट टुगेदर टुमारो। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग। वील एंड इट हियर। भगवत गीता की जय। जय। थैंक यू।
everybody for joining. Hare Very Krishna. Jai. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.